دو میچ کھیلے جائیں گے، جن میں سے پہلا میچ ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا، جبکہ دوسرے میچ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نیوز کے نمائندے بلال احمد سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا، آج دو اہم میچز ہونے جا رہے ہیں۔ جی، شہر قائد میں ہیش ٹیگ کھیل دیوانوں کا PSL 4 کے جو میچز ہیں وہ اعصاب شکن مار کے جاری ہیں۔ گزشتہ روز بھی کانٹے دار مقابلے کے بعد کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کو ہرایا تھا۔ آج بھی دو اہم میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ جو ہے وہ دوپہر 2 بجے لاہور قلندرز اور ملتان سلطان کی ٹیموں کے مابین ہوگا، جبکہ دوسرا میچ جو ہے وہ کراچی کنگز اور اسلام آباد پشاور زلمی کے درمیان جو ہے وہ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ تمام تر تیاریاں انتظامیہ کی جانب سے مکمل کر لی گئی ہیں۔ میں اس وقت نیشنل اسٹیڈیم کے باہر ہی موجود ہوں، جہاں پہ اب سے کچھ ہی دیر بعد جو اس روڈ ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، کیونکہ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ صبح 10 بجے کے بعد شٹل سروس جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی، اور جو پارکنگ ایریاز بنائے گئے ہیں وہ وہاں سے شائقین کرکٹ کو لے کر گراؤنڈ تک پہنچائے گی۔ دوپہر 2 بجے جو ہے وہ میچ شروع ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 12 بجے تک جو ہے تمام تر شائقین کرکٹ کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم پہنچا دیا جائے گا، جس کے بعد جتنے بھی انٹری گیٹس ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ اگر ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو آج بھی شہر بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ 13,000 سے زائد پولیس اور رینجرز کے جوان آج بھی شہر قائد میں نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف میں سیکیورٹی کے اوپر مامور ہوں گے، جبکہ آج پیر کا دن ہونے کی وجہ سے یقیناً ٹریفک کا جو فلو ہوگا وہ زیادہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ 1300 سے زائد جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں انہوں نے خصوصی پلان آج کے لیے ترتیب دیا ہے، اور کراچی کی مختلف سڑکوں پر بڑی تعداد میں آج ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں وہ ٹریفک کو ڈائیورژن دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جو شائقین کرکٹ ہیں وہ 10 بجے تک جو ہیں جو پارکنگ ایریاز ہیں وہاں تک پہنچ جائیں، تاکہ پھر ان کے جو تلاشی کا عمل پورا ہونے کے بعد اور ان کے ٹکٹ چیک ہونے کے بعد ان کو شٹل سروس کے ذریعے اپنے مقررہ اوقات پر نیشنل اسٹیڈیم تک پہنچا دیا جائے گا۔ سخت ترین انتظامات آج بھی شہر قائد میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ CCTV کیمراز جو ہیں وہ 300 سے زائد لگائے۔ بہت شکریہ بلال احمد، کراچی سے تفصیلات بتا رہے تھے۔ تمام تر معاملات کو حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں اور ٹریفک پلان بھی جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کہتے ہیں بھارت کا آرمی کیپ پہن کر میچ کھیلنے پر ICC کو خط لکھ دیا ہے۔ بھارت نے اجازت کسی اور مقصد کے لیے لی اور کیا کچھ اور۔ PCB بھارت کے خلاف اس معاملے پر سنجیدہ ایکشن لے رہا ہے۔ جو پرمیشن لی تھی وہ لی تھی کسی اور مقصد سے، جو انہوں نے کیا وہ حرکتوں کی کچھ فرق تھی۔ ہم نے پہلے دن سے ہم ICC کے ساتھ اس میں ڈسکشن بھی ہیں، خط بھی ان کو جا رہا ہے، سیکنڈ خط جا رہا ہے۔ ایک خط میں نے آلریڈی بھیجا ہوا ہے، یہ دوسرا خط ان کو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم بڑی اسٹرانگلی لیں گے، مگر ہم اس کو پروفیشنلی ڈیل کرتے ہیں، ہم اس کو آن میرٹ ڈیل کرتے ہیں ان باتوں سے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کسی طرح پالیٹکس۔ سونگ چمن کلا عبداللہ سمیت شمالی علاقوں میں طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی۔ محکمہ موسمیات نے 2 روز تک صوبے بھر میں طوفانی بارشیں جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ آج مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن، گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا امکان ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ لاہور میں موسم کی کیا صورتحال ہے، اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عطا محمد سے۔ جی عطا، آگاہ کیجیے گا، صبح سویرے کیسا موسم ہے لاہور کا؟ آج جی بالکل جو ہے لاہور شہر میں رات سے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اب دن کے آغاز پر شہر میں جو ہے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دن کے آغاز پر بھی ایک رات کا سمے ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات سے بھی پشین کر دی گئی کہ لاہور شہر میں داخل ہونے والے بادل جو ہے آج دن بھر وقفے سے برسنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب پر دن کے آغاز پر ٹھنڈی ہوائیں اور گہرے بادل چھائے رہنے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ شہر میں جو جاتی ہوئی سردی ہے وہ ایک بار پھر سے رک چکی ہے۔ محکمہ موسمیات سے یہ پشین کر دی کہ آج شہر میں 18 کلومیٹر پر گھنٹہ کے حساب سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ اس وقت کیونکہ دن کا آغاز ہے، شہر میں 13 کلومیٹر پر گھنٹہ کے حساب سے تیز ہوا چل رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شہر میں جاتی ہوئی سردی جو ہے ایک بار پھر سے رک چکی ہے۔ شہر کا درجہ جو ہے اس وقت صرف 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج درجہ جو ہے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ جی
और अब बात करेंगे भारतीय स्टाइल अंगेजी की। भारतीय फौज के एलओसी पर दहशतगर्दी रुक न सकी। चकोठी, पांडू और खिलाना सेक्टर की सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी की गई। इत्तलात के मुताबिक एक खातून समेत 2 अफराद शहीद हो गए, 3 अफराद जख्मी भी हुए। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। एक गाड़ी, एक एम्बुलेंस जुज़वी तौर पर तबाह हो गई। गोलाबारी के बाद सरहदी इलाकों के लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। मकबूजा कश्मीर जाने के लिए ट्रेड सेंटर चकोठी में खड़े दर्जनों ट्रक भी महफूज मकामात की तरफ रवाना किए गए। पाक फौज की जानिब से गोलाबारी का मुअस्सर जवाब दिया गया। मुल्क में तब्दीली का आगाज हो चुका। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई हो रही है, लेकिन भारत ने हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत के साथ अमन के ख़्वाहां हैं, कश्मीर पर किसी किस्म की सौदेबाजी कबूल नहीं। मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान की बदौलत अमरीका और तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। अफगानिस्तान में अमन से हाइडल एनर्जी पाकिस्तान को मैसर आएगी। भारत ने हर इंटरनेशनल फोरम को इस्तेमाल किया पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। दुनिया के हर फोरम पर अपनी सारी कबाहतें और अपनी सारी मुश्किलात पाकिस्तान के खाते में डालता था कि आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। नरेंद्र मोदी ने बतौर वजीर आज़म अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है कि हमने पाकिस्तान को सफारती तौर पर तन्हा करना है। जितने इदारे हैं आपके, चाहे वो PIA हो, तो किस किस का नाम लूं, दिवालिया हो चुके। जो एक इदारा है जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, और ये ग्रे लिस्ट हमारे वक्त में नहीं, साबका हुकूमत की वक्त में पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट में आ चुका था। नरेंद्र मोदी के न इंतहा पसंदी काम आई न पाकिस्तान दुश्मनी। रहनुमाओं समेत भारतीय जनता ने भी पुलवामा ड्रामे को मोदी सरकार का कारनामा करार दे दिया। भारतीय रहनुमा राज ठाकरे का कहना है बीजेपी लोकसभा इंतखाबात जीतने के लिए पुलवामा जैसा हमला दोबारा भी करा सकती है। कांग्रेस रहनुमा विजया शांति ने मोदी को दहशतगर्द कह डाला। गिरती मकबूलियत और बढ़ती तनकीद से परेशान बीजेपी ने वोट मांगने के लिए भारतीय पायलट अभिनंदन की तस्वीर इस्तेमाल करना शुरू कर दी। मोदी सरकार को वोटों की हवस ले बैठी। बीजेपी का इलेक्शन मिशन टेंशन मिशन में तब्दील। पूरे भारत से आवाजें उठना शुरू हो गई। बीजेपी इंतखाबी फायदे के लिए फौजियों को मरवा रही है। भारतीय रहनुमा राज ठाकरे ने पुलवामा वाकये को ड्रामा करार दिया। कांग्रेस रहनुमा विजय शांति ने मोदी को दहशतगर्द कहा। बोली आवाम को खौफजदा करने के बाद नरेंद्र मोदी दहशतगर्द की तरह लग रहे हैं, पता नहीं कब बम फेंक दें। गिरती मकबूलियत, बढ़ती तनकीद से परेशान मोदी सरकार की भोंडी हरकतें भी जारी। पाकिस्तान की जानिब से रिहा किए गए भारतीय पायलट अभिनंदन की तस्वीर वोट मांगने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दी। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने भी सियासी जमातों को मुसल्लह अफवाज के किसी भी शख्स की तस्वीर अपनी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी। भारत ने बस हमला किया, क्या हुआ पता नहीं। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ कर लिया। बोली एयरफोर्स हमला करके वापस आ गई, कितनी लाशें गिरी उसका सुराग कैसे लगाए। अगर यही बात है तो भारतीय मीडिया 350 लाशें गिराने का ववेला क्यों मचाता रहा। मोदी सरकार से राहुल गांधी भी कई बार सवाल कर चुके कि मोदी जी हमले के बारे में हमें भी बता दें। अगर ये सब भारत की इंटेलिजेंस नाकामी का मुंह बोलता सबूत नहीं तो क्या है। बालाकोट हमला किया, लेकिन हुआ क्या ये नहीं जानते। कौन सा तैयारा था, कितने लोग मारे गए, कुछ मालूम नहीं। भारतीय वजीर खारजा ने बिलाखिर इंटेलिजेंस नाकामी मान ही ली। कहा भारतीय एयरफोर्स ने हमला किया, कितने लोग मारे गए पता नहीं। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने तो बालाकोट हमले पर मोदी जी को ब्रीफिंग दी, लेकिन शायद बताया कुछ नहीं। बीजेपी के अपने रहनुमा ही लाइल निकले। वीके सिंह ने कहा कितने लोग मारे गए नहीं जानता। अब वहाँ पर आपके आकलन से कितने व्यक्ति थे, सारे वहाँ पे थे कि नहीं थे, उसमें से कितने धाराशायी हुए। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को हमले के सबूत मांगना पड़ गए। भैया देखो, हमें चोट लगी है
तो हमें भी मतलब दिखाइए क्या हुआ। जुनूनी भारतीय मीडिया चिल्लाया कि मिराज तैयारों ने हमला किया, कौन से बम फेंके आज तक पता न चला। मोदी जी के ड्रामे का पोल खुलने के बाद नाकाम इंटेलिजेंस का पर्दा भी फाश हो गया। मोदी सरकार की फसादात करवाकर राजनीति करने की कोशिश। भारतीय शहर मेरठ में तजावजात की आड़ में मुसलमानों के 2 से ज्यादा घर जला दिए। वाक़े के खिलाफ अवाम का एहतजाज, हंगामा आराई। मुतासरीन कीमती अशिया से महरूम हो गए, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इंतहा पसंद मोदी सरकार पर इलेक्शन जीतने का जुनून सवार, भोंडी हरकतों पर उतर आए। मुसलमानों के खिलाफ एक और घिनौनी कार्रवाई। कई दिहाइयों से आबाद मेरठ में तजावजात की आड़ में मुसलमानों के 200 से ज्यादा घर जला दिए। घर जलाए जाने के वाक़े के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज। मुतासरीन कीमती अशिया से महरूम हो गए, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस ने औरतों को मारा, पीटा और हवाई फायरिंग भी की। आने के पुलिस ने आग लगाई है। ये मतलब गरीबों को परेशान कर रहे हैं ये लोग। कौन था पुलिस वाला? पुलिस ने आग लगाई है, पुलिस ने आग लगा रहा है। और बच्चे भी बहुत सारे जल गए, बच्चे भी बहुत सारे जल गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंतजामिया ने वाक़े की अदालती तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तजावजात की आड़ में घर 6 मार्च को भूसा मंडी में गिराए गए थे। मकबूजा कश्मीर में जिंदगी हकीर काबिज भारतीय फौज ने नन्ही परी से बसारत छीन ली। पैलेट गन्स के छर्रों से मुतासरा आंख अक़वाम आलम के सामने भारतीय दरिंदगी के तमाशे का पता दे रही है। पुलवामा में कातिल फोर्सेस ने खून रेज ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस की जालमाना कार्रवाइयां नामंजूर। मकबूजा कश्मीर के 15 से ज्यादा अखबारात ने एहतजाज के तौर पर पहला सफ़ा खाली छोड़ दिया, इस सवाल के साथ कि आज़ादी राय का दरस देने वाले खामोश तमाशाई क्यों हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत की तजलील, मासूम कश्मीरी जवानों खवातीन के बाद नन्ही लड़कियों को भी मजालिम की भेंट चढ़ा दिया। श्रीनगर के अस्पताल में 19 माह की नन्ही परी पैलेट गन्स के छर्रों का शिकार, एक आंख से बसारत खो बैठी। वालिदैन को उम्मीद के शायद कभी बेनाई लौट आए। भारतीय फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयां नामंजूर। मकबूजा कश्मीर के बारात में द कश्मीर मॉनिटर, कश्मीर आब्रोज, कश्मीर रीडर समेत 15 अखबारात का अनोखा एहतजाज। इंसानी हकूक की भड़के मारने वाले आलमी ज़मीर को जोड़ने के लिए मकबूजा वादी के अखबारात ने पहला सफ़ा खाली छोड़ दिया ताकि दुनिया को भारत के कातिल फौज का मकरूह चेहरा दिखाया जा सके। आगे बढ़ते एक अहम खबर आपको दें। तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर अफगानिस्तान में अमरीकी कैंपों के पास रहते थे। हॉलैंड की सहाफ़ी बेटी डैम ने अपनी किताब में इंकशाफ किया है। लिखा कि मुल्ला उमर किसी रिश्तेदार से भी कम ही मिला करते थे। BBC की पश्तो नशरियात को सुनते और अपनी नोटबुक तहरीर किया करते थे। मुल्ला उमर अमरीकी फौजियों के करीब खंदकों में छुपा रहता। सहाफ़ी ने बताया कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे मुल्ला उमर के पाकिस्तान में छुपे होने के दावे करते रहे। 2001 के बाद मुल्ला उमर ने पाकिस्तान में कदम भी नहीं रखा, अफगानिस्तान में ही रहे। कराची में गिजरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। निजी रेस्टोरेंट में डकैती करने वाला गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान में 3 डकैत और 3 मुलाजिमीन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से लूटी गई रकम और असलहा भी बरामद कर लिया गया। कराची से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर गिजरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। निजी रेस्टोरेंट में डकैती करने वाला गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान में 3 डकैत और 3 मुलाजिमीन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से लूटी गई रकम और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। और अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। थाना सदर पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की निशानदेही पर रिकवरी के लिए जा रहे थे, साथियों ने फायरिंग कर दी। हलाक होने वाला नासिर मांगा कई मुकदमात में मतलूब थे। निशर अस्पताल मुल्तान की कैंसर स्पेशलिस्ट पर फायरिंग करने वाले मुबैना मुलजिम का वीडियो पैगाम मंजर आम पर आ गया। प्रोफेसर एजाज मसूद के गलत इलाज की वजह से मेरी बीवी मर गई। फैसल नामी शहरी ने वीडियो बयान में दावा किया फायरिंग जान से मारने के लिए नहीं, सबक सिखाने के लिए की। मैंने जो इसको मारा है वो इसलिए मैं चाहता इनको दिमाग पे भी मार सकता था, दिल पे भी मार सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं मारी
कि इसको नसीहत मिले। उधर लाहौर थाना कोट अब्दुल मालिक की हदूद में गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग लग गई। गाड़ी मुकम्मल तबाह। कार में मौजूद तमाम अफराद महफूज रहे। 4 नौजवान शादी की तकरीब से शेखुपुरा जा रहे थे। लोधरा के मॉडल बाजार में आग भड़कने से 50 से ज्यादा दुकानें जल गईं। फर्नीचर, कीमती सामान जल कर राख। फायर ब्रिगेड के अमले ने कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ एक ब्रेक, मगर इससे पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है फूड पैंडा पे डिस्काउंट्स तो पाना। फूड पैंडा हल्का नहीं आता। और खाओ सब, पियो सिर्फ जामे शीरी। और Bata Spring Summer Collection 2019 in stores and online now. Be and comfortable with. 3 शिफ्टों में ड्यूटी देने लगे। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इलाज शुरू। वज़ीर-ए-आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल की जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर नदीम मलिक और प्रोफेसर साकिब शफी को शहबाज गिल ने साथ ले जाकर नवाज शरीफ का मुआयना कराया। डॉक्टर्स ने कुछ अद्वियात में तब्दीली और नवाज शरीफ को एक्सरसाइज साइकिल भी फराहम करने की तजवीज़ दी, जिसे पंजाब हुकूमत ने मान लिया। मरियम नवाज की डिमांड पर जेल में हेल्थ यूनिट भी कायम। 3 कार्डियोलॉजिस्ट की मरहलावार ड्यूटी लगा दी गई। नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत का खत भी मौसूल। हुकूमत ने इलाज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने खत के जवाब के लिए भी वक्त मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात होगी। कहते हैं इंसानी हमदर्दी के तहत इयादत के लिए जा रहा हूं, कोई सियासी एजेंडा नहीं। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म को उनके मालिज तक रसाई न देना हुकूमत की जानिब से इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। गरीब को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, हुकूमत ने तो हद ही कर दी। अब खामोश नहीं बैठ सकता। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। पंजाब के दौरों का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह बोले, अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। मौलाना फजल रहमान की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तो अगर पहले 100% महंगाई थी तो 200 पे पहुंच गई। तो इक्तिसादी लिहाज से भी हमारा मुल्क दिवालियापन के लकीर को छू रहा है। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आलमी ताकतों ने बेहयाई के लिए पाकिस्तान को मुंतखब कर लिया है। इजहार राय पे कदगल लगाना जमहूरी रिवायत के मुनाफी है। हुकूमत कहती है नारो, ये कहते हैं NRO। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की फिर ऑपोजिशन पर चढ़ाई। कहते हैं हिसाब सबसे लेंगे, इनको रिलीफ दिया तो फिर अवाम का हाथ और हमारा गिरेबान होगा। नून लीग का एक धड़ा और पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। दुनिया वज़ीर आज़म को नोबेल इनाम देने की बात कर रही है और खुर्शीद शाह धमकी दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म ने पूछा है कि किस डॉक्टर के पास जाना है। लंदन से डॉक्टर बुलाने का भी कहा, लेकिन ये लंदन जाना चाहते हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा कि जब मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल की बात आती है तो मसाजिद और मदारिस को बंद किया जाता है। हुकूमत मगरबी एजेंडे पर अमल पैरा है। पेशावर से मजीद बताएंगे अब्दुल कायूम आफरीदी। जमात इस्लामी का पेशावर के निश्तरहाल में कबायली वर्कर्स कन्वेंशन। सेनेटर सिराजुल हक का कन्वेंशन से खिताब। कहा, बैनुल-अक़वामी दबाव पर हुकूमत को नेशनल एक्शन प्लान याद आ गया। मगरबी एजेंडे के तहत मसाजिद बंद कराई जा रही है। भारत के एतराज पर किसी जमात के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भी उन्होंने मसाजिद को बंद करना शुरू किया है और यहाँ भी उन्होंने मसाजिद को बंद करना शुरू किया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, फाटा इंजमाम के 10 माह बाद भी कोई इस्लाहात नजर नहीं आ रहे। तमाम सियासी जमातों को कबाइल के हुकूक के लिए कड़ा करके APC बुलाएंगे। मैं जो 3% देने का वादा किया है, बेरोजगारी को खत्म करने का वादा किया गया है, अब वक्त आया है कि उनके साथ वो वादे पूरा किया जाए। पनामा लीक्स पर बात करते हुए सिराजुल हक ने कहा, नवाज शरीफ के अलावा पनामा लीक्स के 435 अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जमात इस्लामी एहतसाब के लिए तहरीक दोबारा शुरू करेगी। कैमरामैन जमील अख्तर के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तरक्याती फंड्स पर वक्त इस्तेमाल न करने पर मुकामी हुकूमतों को मजीद फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया। मुकामी हुकूमतें 3 साल के दौरान जारी 58 अरब रुपए में से सिर्फ 41 अरब खर्च कर सकी हैं। तफसीलात जानते हैं पिशावर से लिहाज अली से। खैबर पख्तूनख्वा में 4 साल के लिए कायम जिले हुकूमतों की मुद्दत रवा साल अगस्त में खत्म हो रही है। इस दौरान सूबाई हुकूमत ने जिले हुकूमतों को मजमूई तौर पर 58 अरब रुपए जारी किए, जिनमें तहसील, जिले और विलेज कौंसिल सिर्फ 41 अरब रुपए खर्च कर सके हैं। सूबाई महकमा खजाना के मुताबिक तरक्याती फंड मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल न करने पर जिले हुकूमतों को मजीद फंड जारी न करने का फैसला किया गया है। मुकामी हुकूमतों को साल 2016-17 में 15 अरब, 2017-18 में 28 अरब और रवा माली साल में 14 अरब रुपए जारी किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मई 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में 24 अजला में मुकामी हुकूमतें कायम हुई थी। लिहाज अली, न्यूज़, पेशावर। बलूचिस्तान के इलाके भागनाड़ी में गुज़िश्ता 20 साल से पीने के पानी का संगीन मसला दरपेश है। मसले को हल कराने के इलाके के नौजवानों ने 1 मार्च से कोयटा के लिए पैदल लॉन्ग मार्च शुरू किया। पीर जख्मी होने के बावजूद उन्होंने लॉन्ग मार्च को जारी रखा। तफसीलात बताएंगे आज़म उल्फत। ये जख्मी पैर उन लोगों के हैं जिन्होंने 1 मार्च से बाग से कोयटा के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज किया था। 10 रोज में वो 350 किलोमीटर का फासला तय करके कोलपुर पहुंचे हैं। बाग की लगभग 1 लाख की आबादी को गुज़िश्ता 2 दहाइयों के अरसे से पीने के पानी का संगीन मसला दरपेश है। लोगों के पीने के पानी का इन्हिसार जोड़ों पर है, जहां बारिश का पानी जमा होता है। नायल हुक्मरानों ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सोमो नोटिस लिया गया था, उसको भी उन्होंने हवा में उड़ा दिया है। मजबूर होकर हमने अपना पैदल लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और इंशाल्लाह हम 11 मार्च को कोयटा दाखिल होंगे और अपना बुनियादी हक पीने का साफ पानी लेकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग मार्च के शुरका कोयटा पहुंचने पर मुख्तलिफ मुकामात पर अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। साथी रिपोर्टर इमरान सुमालानी के साथ आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। जिगर के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए बड़ी खबर आ गई। लाहौर में लीवर ट्रांसप्लांट का आगाज हो गया। रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले शख्स के जिगर की कामयाब पेवंदकारी हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कामयाब पेवंदकारी पर इजहार मुसरत करते हुए महकमा सेहत के अफसरों, एहलकारों, तिब्बी और मुआविन अमले की कोशिशों को सराहा। सूबाई वजीर बराए सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है, अब किसी को महंगे इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर में पहला लीवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कामयाब। रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले 32 साला मरीज का ऑपरेशन। मरीज की बहन ने जिगर अतिया किया, दोनों सेहतयाब। लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सर्जन फैसल सऊद डार ने किया। पाकिस्तान में इससे कबल लीवर ट्रांसप्लांट की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। मरीज 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके चीन या भारत जाता था। PKLI में इस वक्त 6 बिस्तर जिगर के मरीजों के लिए मुख्तस हैं। मंसूबा मुकम्मल होने पर सालाना 130 लीवर ट्रांसप्लांट करने की इस्तेदाद होगी। जिगर की कामयाब पैवंदकारी पर साबिक वजीर आला पंजाब और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खुशी का इजहार किया। कहते हैं पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में जिगर की कामयाब पैवंदकारी की बड़ी खबर है। इसके लिए साबिक वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, डॉक्टर सईद अख्तर, डॉक्टर फैसल डार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर इक़्तिदार में वफाकी वजारत सेहत के ज़ेर एहतमाम सेहतमंद पाकिस्तान साइकिलिंग रैली का इनेकाद किया गया। वज़ीर सेहत आमिर कियानी बोले, साइकिलिंग जिस्मानी सरगर्मी का बड़ा अहम अंसर है जो कि गैर मुतअद्दी अमराज पर काबू पाने में मस्बत किरदार अदा करता है। मजीद बताएंगे ज़ीशान सैयद। वजारत सेहत ने स्पोर्ट कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में किया साइकिल रैली का इनेकाद। 2 पहियों की सवारी का मकसद लोगों में सेहतमंदाना सरगर्मियों से मुतालिक शऊर उजागर करना था। अपनी सेहत से प्यार करने वालों की रैली में भरपूर शिरकत। माहौलियाती आलूदगी की जंग में सिर्फ हिम्मत के ईंधन से चलने वाली ये माहौल दोस्त सवारी अहम इतिहार साबित होगी, जो तेल फूंकती है ना धुआं छोड़ती है। मकसद यही है कि लोगों को हेल्थ की तरफ लाया जाए, हेल्थ को प्रमोट किया जाए। और ऑब्वियसली हम सब की लाइफ में ज़रा फिटनेस बहुत कम है। पाकिस्तानी पीपल दे आर वेरी एनर्जेटिक,
लेकिन उनकी सारी एनर्जी अपना काम और ऑफिस और घर और कुकिंग और इसमें खर्च हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी और बाहर निकल के इट्स अ सोशल एक्टिविटी एज वेल, यू मीट पीपल, बड़ा अच्छा लगता है। रैली में वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए मीडिया इफ्तिखार दुरानी, वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर और वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा भी शरीक हुई। कैमरामैन फराद खोकर के साथ जिशान से। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में दूसरे बाबा गुरु नानक कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ तो शायकीन कबड्डी पंजाब के रवायती खेल से खूब महसूस हुए। साजिद खान की रिपोर्ट। बल्ले बल्ले लुट लो मौजा, पंजाब के सकाफती खेल और पंजाबियों की जान कबड्डी का सज गया मैदान। इकबाल स्टेडियम में दूसरा बाबा गुरु नानक कबड्डी टूर्नामेंट का इनकाद हुआ तो शाकीन कबड्डी दिलचस्प खेल को खूब इंजॉय करते नजर आए। जब मां खेड दा नाम आ गया तो फिर उत्ते पंजाबी कमेंट्री ते बहुत अच्छा एक साइन आ। श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश दिहाड़े ते 550वें जन्मदिन ते उत्ते ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा। बहुत खुशी वाली गल है कि साडे पास असीं पाकिस्तान दे विच टूर्नामेंट करवा रहे हैं। पंजाबी में कमेंट्री हो या फिर एक दूसरे को जफ्फा डालते कबड्डी के गबरू जवान पहलवान, सब मनाजर ही देखने लायक थे। एक रोजा कबड्डी टूर्नामेंट में अमेरिका, कनाडा समेत देश बदेश से आई 4 टीमों ने हिस्सा लिया। साडा पंजाब दा रवायती खेल है कबड्डी ते असीं खुशामदीद करने आ जेडे सरदार बाहरों आए हुए ने, जेडे साडे सरदार भाई इंडिया जो आए ने असीं उन्हों वेलकम करने आ। रवायती खेल कबड्डी में हिस्सा लेने वाली टीमों को 1 करोड़ रुपए तक कैश और कीमती इनामात से भी नवाजा गया, जबकि इस मौका पर सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी का स्पोर्ट्स गाला तालिबात के दरमियान जबरदस्त मुकाबले। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान भी तालिबात का हौसला बढ़ाने पहुंच गए। कामयाब तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। तफसीलात बताएंगे शाकर अब्बासी। रावलपिंडी का रंगारंग स्पोर्ट्स गाला, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले। तालिबात में जबरदस्त जोड़ पड़ा। रेड, येलो और पर्पल हाउस में तकसीम तालिबात ने अपनी टीमों को खूब सपोर्ट किया। फाइनल मुकाबले देखने के लिए चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पहुंच गए। तालिबात ने शानदार इस्तकबाल किया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना था कि अमली जिंदगी में कामयाबी के लिए तालीम के साथ साथ खेलों की सेहतमंदाना सरगर्मियां तलबा की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इंतहाई अहमियत रखती हैं। जैसे टीम वर्क, टीम की सूरत में आपने कोई गोल अचीव करना होता है, या जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जिसे हम फाइटिंग स्पिरिट कहते हैं, ये मैटर नहीं करता कि हम जीतते हैं, हारते हैं या बराबर होता है। मैटर ये करता है कि क्या फाइट, देखिए आप कितनी आवाज़ें आपको आ रही हैं, क्या आपके अंदर एक स्पिरिट है जीतने की, आगे बढ़ने की, कोशिश करने की, हिम्मत करने की, मेहनत करने की। एज ए नेशन हमें इसकी जरूरत है। सुपीरियर कॉलेज की तालिबात का कहना था कि चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की आमद ने जीत का मजा दुबाला कर दिया है। चेयरमैन साहब यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा फील हुआ कि वो मेरा मैच देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें हमारी टीम को अपने हाउसेस को बकअप करने आए थे। बहुत अच्छा कंपटीशन था, बहुत ज़्यादा टास्क था, बहुत ज़्यादा टफ था। आप लोग जितना करोगे उतना आगे से मिल रहा था। ये नहीं था कि एक टीम ढीली है और दूसरी एक्टिव है, दोनों बहुत टफ थी। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ने कॉलेज के प्रिंसिपल आमिर रफीक और उनकी टीम को कामयाब स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। मुकाबलों के इख्तिताम पर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने जीतने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन हमदोश डार के साथ शाकिर अब्बासी, न्यू न्यूज़ रावलपिंडी। वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद कहते हैं इमरान खान की क़यादत में ऐसा निज़ाम लेकर आ रहे हैं जिससे कोई बच्चा माली अदम तहफ़्फ़ुज़ की बिना पर तालीम से महरूम नहीं रहेगा। जबकि सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात सैयद शमशान बुखारी कहते हैं अगर पाकिस्तान का निज़ाम तालीम ठीक कर दिया जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाएँ। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। निजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम मुस्तहिक तलबा में सालाना वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब हुई। तकरीब में विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद, सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद शमशान बुखारी, मियां मंजूर वट्टू समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने तकरीब से खिताब में साबिक हुक्मरानों को निशाने पर ले लिया। एक कौम यकजा नहीं हो सकती, एक कौम नहीं बन सकती अगर निसाब जो है वो मुख्तलिफ, तो इसलिए भी हमने उसको निसाब को इकट्ठा करना है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद शमशान बुखारी ने कहा कि इमरान खान अपने विजन के मुताबिक सेहत और तालीम पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। तालीम सबके लिए आम हो, सेहत की सहूलतें सबके लिए आम हो, तो ये मुल्क
वाकयातन एक नए पाकिस्तान की शक्ल पेश कर सकता है। तकरीब के इख्तिताम पर नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में एजाजी शील्ड्स और सालाना वज़ाइफ के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौका पर वज़रा ने यकसा निज़ाम तालीम के लिए इक़दामात की भी यकीन दहानी कराई। गवादर में एक रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद हुआ। कुतुब मेले में मुख्तलिफ बुक स्टॉल्स और आर्ट गैलरी में फ़न पारे भी रखे गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने गवादर कुतुब मेले में शिरकत की। कुतुब मेले की तफसीलात कोयटा से आज़म उल्फत बताएंगे। ग्वादर में एक रोजा कुतुब मेला तुलबा तालबात के अलावा सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला जाम कमाल का कहना था कि कुतुब मेला जैसे प्रोग्राम किताब और इल्म से नजदीकी का बायस बनते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान ने बुक स्टॉल आर्ट गैलरी का दौरा किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर मुसव्विरा माँ पारा को नकद इनाम से नवाजा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला जाम कमाल का कहना था कि सूबे की तरक्की के लिए अवाम को सहूलियात की फराहमी के साथ कानून साजी के जरिए निज़ाम में तब्दीली लाने की जरूरत है। मेले में तुलबा और तालबात ने गहरी दिलचस्पी ली और कुतुब मेले के इनेकाद को सराहा। आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 में ट्रेनिंग वर्कशॉप का आखिरी रोज़। वर्कशॉप में IT 92 कैनवस के मुताबिक नए स्टार्टअप्स ने इंडस्ट्री बोर्ड के सामने अपने बिजनेस आइडियाज़ पेश किए। तफसीलात जानते हैं अब्दुल मनान गिलानी से। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतजाम तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद। मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले मुंतखब स्टार्टअप्स की शिरकत। जनरल मैनेजर सुपीरियर ग्रुप और स्ट्रेटेजी हेड फैजान महमूद का कहना था स्टार्टअप्स में ज्यादातर लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं जिनको ट्रेनिंग के बाद इंडस्ट्री बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। आफ्टर दिस कंपटीशन हम इसमें से 4 या 5 स्टार्टअप्स को चूज करेंगे जिनको हम इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 की फैसिलिटी में 6 महीने गुजारने की इजाज़त देंगे। इन 6 महीने के दौरान अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, अपनी टीम के ऊपर काम करेंगे और उनकी कोशिश ये होगी कि बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स या तो वो अच्छी मार्केट पोजीशनिंग कर चुके हों इन टर्म्स ऑफ सेल्स या फिर हम उनको किसी ना किसी इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करा सकें। शुरका ने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की तरवीज में सुपीरियर ग्रुप की काविशों को सराहा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऐसा कि स्टार्टअप्स आके अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं और उनको एक अपना बिजनेस ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पे स्केल अप हो सकती है उनकी अपॉर्चुनिटी। It was a really good experience. People have a lot of great ideas over here. But I think what the best thing is the fact that Pakistan now has places in which we're promoting entrepreneurship. मुंतखब होने वाले 10 खुश नसीबों को इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 में 6 माह की ट्रेनिंग के साथ मेंटोरिंग मैसर आ सकेगी। जबकि इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट 92 के पहले साइकिल में 4 पाकिस्तानी स्टार्टअप्स अपने आइडियाज को अमली जामा पहनाकर बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ अब्दुल मनान गिलानी, नियो न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।